Hello students, I am Swarndeep Kaur and welcome to my YouTube channel Atomic Chem. Today's our topic is about important questions of electrochemistry. Our first question is standard cell potential of a Daniell cell is 1.1 volt. That means here standard electrode potential has been given. So calculate the standard Gibbs energy for the solution. So for the reaction, reaction given है हमें, उसके लिए हमें उसकी Gibbs energy find out करनी है. To find out the Gibbs energy, there is formula in electrochemistry that is minus NF E naught cell. E naught cell हो गया अपना electrode potential which is given for standard cell potential कितना given है हमें 1.1 volt. Okay, it is represented by E naught and our formula for Gibbs energy G is equals to Gibbs is our free energy delta G R naught because it's a standard condition, that's why we put here naught, then minus NF E naught cell. So E naught cell is cell potential which is already given 1.1 volt and number of electron. The exchange of electron, how many electrons are exchanged, that is calculated as N. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का. जितना चार्ज है उतना एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है. देन N अपना हो गया 2 और F फेराडे 96500. ओके, ये होता है फेराडे. बस कुछ नहीं, सारी ये चीजें हैं, N है, F है, E है, इसको इसके अंदर पुट कर देना है. NF E naught cell 2 into 96500 1.1. Then our answer is joule per mole. Then we convert it into joule into kilojoule. Then 21.227. That is your first question. Okay, then take a screenshot. Next. Question second. What is Kohlrausch law? Kohlrausch law. Kohlrausch law, very important question is here for this session. That is, Kohlrausch law होता क्या है? Kohlrausch law होता है when we find out the molarity. Okay, molarity means molar conductivity. Okay, molar conductivity find out करनी है lambda m naught. तो हमें lambda m naught find out करना है और हमारे पास में है इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का मीन्स है उसके अंदर सोल्ट है. ओके, तो दो, जैसे अपन ने एक सोल्ट लिया उसमें उसका कैटाइन भी होगा और उसका एनाइन भी. फॉर एग्जांपल अपना सोल्ट है NaCl, तो ये भी है और ये भी है, तो ये अलग अलग एलिमेंट है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और इसकी वजह से भी एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कंडक्टिविटी जनरेट हो रही है. तो इन दोनों की कंडक्टिविटी का जो सम होगा वही क्या हो जाएगा, अपना मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा. ओके, अब हो सकता है ये 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर हम बात करें MgCl2, MgCl2 के अंदर अपनी एनाइंस कितने हैं? 2 है. दैट मीन्स हमें कितने चाहिए होंगी, है ना, डबल कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी वो डबल हो जाएगी. दैट मीन्स Mg की कंडक्टिविटी प्लस 2Cl की कंडक्टिविटी. ओके, तो हमें इसका फॉर्मूला आ जाएगा. फर्स्ट तो क्या है, कोलराउश लॉ हमें किसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की अगर हमने मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? कोलराउश लॉ की. क्योंकि कोलराउश लॉ कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो कैटाइन एंड एनाइन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी का सम होती है. ओके, उसके बाद में वो कहता है कि नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड नंबर ऑफ एनाइंस आल्सो इफेक्ट द मोलर कंडक्टिविटी इन अ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, then according to Kohlrausch law, molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is the sum of molar ionic conductivity of cation and anion of the electrolyte. For next, lambda m naught molar conductivity equal हो गया conductivity of cation and conductivity of anion. Next, if the electrolyte gives more than one cation or anion, then we use mu plus and mu minus, that is the number of cations and number of anions. You can also take a screenshot of this question. Take this one beta. Next question.
Question third. Lambda and naught values of NaCl. Okay. Numerical. Lambda and naught values of NaCl, HCl and NaAC. Sodium acetate are given. है ना, हमें दी हुई है किसकी? Lambda m molar conductivity are given for sodium chloride, for HCl hydrochloric and for sodium acetate. And we have to find out the molar conductivity of acetic acid. है ना, HAC. AC यहाँ पे एसिटेट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, CH3CO माइनस. तो यहाँ पे हमें किसकी निकालनी है? एसिटिक एसिड की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है. हमें 3 की गिवन है, उन सभी को मिला के हमने 1 की निकालनी है. दैट मीन्स हमें किस किस की गिवन है? NaCl की गिवन है, HCl की गिवन है एंड NaAC सोडियम एसिटेट की गिवन है. और फाइंड आउट किसकी करनी है? HAC. यानी हमें एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए, और कट क्या करना है? Na और Cl. दैट मीन्स कि इन दोनों को अगर हम सम कर दें, इन दोनों को सम कर दें और उसमें से Na और Cl को माइनस करना है, तो Na ये रहा, Cl ये रहा, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे. यानी कि इन दोनों को सम करके और इसके वाले को क्या करना है? हमने माइनस करना है. माइनस करते ही Na भी कट गया और Cl भी कट हो गया. क्या बच गया? ACH बच गया. ओके, तो हमें ये गिवन है मोलर कंडक्टिविटी. देखो, लैम्डा एम नोट NaCl Na प्लस, ये इतना करने की जरूरत नहीं है. अगर करो तो ठीक है, द बेस्ट है. अगर नहीं भी करना चाहो, जैसे कि अभी टाइम कम है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा पड़ा हो, सीधा ही लिखो लैम्डा एम नोट 126, लैम्डा एम HCl दिस वन, लैम्डा एम दिस. ये गिवन है, उसी को ही लिखा है हमने. ओके, अब क्या करना है हमने? देखो, हमें चाहिए क्या? ये चाहिए और ये चाहिए, तो इन दोनों को तो क्या कर दो? सम कर दो. माइनस क्या करना है? Na को और Cl को, यानी कि इसको क्या करना है? माइनस करना है. तो इसको यहाँ से माइनस कर दो. तो दोनों को सम किया, 425.9 प्लस 91.0 माइनस क्या करना है? 126.4. और इस तरह से अपना ये आंसर आ जाएगा. प्लस माइनस आप कर ही लोगे, है ना. ये आप लिखना चाहो तो इसको लिखो, नहीं लिखना चाहो तो कोई नीड नहीं ना. अभी टाइम कम है तो उस हिसाब से चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write down the mathematical formula of Faraday's first law of electrolysis. फर्स्ट लॉ का और सेकंड लॉ का दोनों का ही हमें आना चाहिए. ओके, Faraday's फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ छोटे छोटे हैं और इम्पोर्टेंट भी है. उसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आ ही जाता है, इवन इन MCQs, इन फिलअप्स. ओके, यहाँ पे भी आ सकता है फॉर 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स, और या फिर वो जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनके अंदर, जैसे 2 मार्क्स का है तो उसके अंदर हाफ मार्क्स का या 1 मार्क्स का इसको पूछ लेते हैं. ओके, देखो, अकॉर्डिंग टू Faraday's फर्स्ट लॉ सीधा लिखना है W इक्वल्स टू ZIT. हियर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट. ओके, अपना Faraday का फर्स्ट लॉ था क्या कि जितना मास, कितना कोई सब्सटेंस है, कोई इलेक्ट्रोलाइट है, वो कितना उसकी क्वांटिटी डिपॉजिट होगी, दैट्स डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा उतनी ज्यादा क्या है? उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है ना. IT क्या होता है? चार्ज हो गया, है ना. इलेक्ट्रिसिटी हो गया. I एम्पियर एंड T टाइम. I करंट इन एम्पियर एंड T टाइम इन सेकंड. दैट मींस चार्ज हो गया. एंड W मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट ऑफ ऑन इलेक्ट्रोड. Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में पूछ लेते हैं. देन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज Z इक्वल क्या हो जाएगा? W/IT. ये भी अगर पूछे तो इस तरह से इसको भी आप कर सकते हो. ओके ओके बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिफाइन द Faraday's सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. अभी मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बोथ आर इम्पोर्टेंट. तो सेकंड लॉ कहता है कि जब कोई करंट पास आउट होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी में से जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है उसमें से करंट पास आउट होता है ना, सेम टाइम पर, है ना, सेम टाइम तक के लिए अगर अपन बात करें कि उतने ही टाइम तक, दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, दोनों के अंदर सेम टाइम तक अगर होता है, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके केमिकल इक्विवेलेंट के. ओके, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है. सेम टाइम तक दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, सेम टाइम तक सेम करंट पास आउट हो रहा है दोनों इलेक्ट्रोलाइट में से,
तो उनका जो डिपोजिशन है वो डिपेंड करेगा कि उनका केमिकल इक्विवेलेंट कितना है, सब्सटेंस का केमिकल इक्विवेलेंट, यानी कि जो अपना इलेक्ट्रोड है उसका केमिकल इक्विवेलेंट कितना है, इक्विवेलेंट वेट हो गया है ना। देखो अकॉर्डिंग टू Faraday's second law, if same quantity of current is passed through various electrolytes for the same time, then the mass of substance deposit at various electrodes are proportional to their chemical equivalent. Okay, take a screenshot of this question beta. Next question, write down the relation between conductance, कंडक्टिविटी एंड सेल कांस्टेंट ऑफ अ सेल। सिंपली पूछेगा वो हमने और सिंपली इसका लिख के आना है। ओके, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल्स टू जी स्टार इज सेल कांस्टेंट। वी नो दैट सेल कांस्टेंट है ना, एरिया ऑफ सेल, एरिया ऑफ सब्सटेंस एंड लेंथ ऑफ एरिया ऑफ सेल एंड लेंथ ऑफ सेल। सेल का मीन्स है जो अपन ने इलेक्ट्रोड लिया है उसका कितना है, तो दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ओके, सेल कांस्टेंट के ऊपर भी अगर आप हमको पूछ ले तो हमने क्या बताना है, उसके एरिया एंड लेंथ का जो रेशियो है ना, जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, how many coulombs are required to reduce 1 mole of Al plus 3 of aluminium? एल्यूमिनियम के प्लस एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम प्लस 3 है ना, 1 मोल Al प्लस 3 में कन्वर्ट करने के लिए कितना हमें चार्ज की नीड है। तो देखो चार्ज हमें उतना ही चाहिए जितने हमें इलेक्ट्रॉन्स को उसमें से निकालना है ना। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन, और अभी किस में आएगा, फेराडे में। हियर वी रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्यूमिनियम, दैट्स व्हाई वी नीड 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, 3 फेराडे। ओके, 3f। तो यहाँ पे हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें क्या चाहिए, 3f। f की वैल्यू हमें पता ही है 96500, नहीं पता तो याद रख लो, ठीक है। फेराडे की कितनी है, 96500, इसके साथ में इसको मल्टीप्लाई करो, दैट्स आवर आंसर। तो कहते हैं टू रिड्यूस 1 मोल Al plus 3 moles of electrons are required, 1 mole electrons 1 Faraday 96500 coulomb, that means 3 mole electrons 3 into this one, and that is our answer. Okay, take screenshot. Next question, question 8, what is the effect of dilution on molar conductivity? Very important question. What is the effect of dilution on molar conductivity? देखो कंडक्टेंस पे, कंडक्टिविटी पे एंड मोलर कंडक्टिविटी, तीनों के ऊपर ही अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ इंक्रीजेस आफ्टर इंक्रीजिंग डाइल्यूशन। डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करते हैं ना तो मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस दोनों ही इंक्रीज होते हैं, बिकॉज आयोनाइजेशन इंक्रीज। आयोनाइजेशन इंक्रीज का दैट मीन्स आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो उसका मतलब है कि ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे, एंड एज वेल एज मोर नंबर ऑफ आयंस, then mobility of ions also increase, and that's why our electricity, it's produce more and more electricity, that means conductance increase. Okay, यही होता है। जैसे जैसे क्या होगा, डाइल्यूशन करेंगे तो जो अपने इलेक्ट्रोलाइट था, जो सोल्ट था, जिसका अभी तक आयोनाइजेशन नहीं हुआ था, जो आयंस में ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, वो भी अब क्या होने लग जाएगा, आयंस में ब्रेक डाउन होने लग जाएगा। ओके, गॉट इट। अब अगर वो आयंस में टूटेगा देन नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। सेम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी में होता है। मोलर कंडक्टिविटी के अंदर हमने क्या लिया, 1 मोल सब्सटेंस लिया, यानी कि अपना इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल सोल्ट है ना। तो 1 मोल हमने लिया है, 1 मोल में से मान लो पहले सिर्फ 50 ही जो हाफ था, हाफ मोल ही क्या हुआ था, आयोनाइज हुआ था। डाइल्यूशन किया यानी पानी और डाला तो जो बाकी का बचा हुआ आधा था वो भी क्या हो गया, आयोनाइज्ड हो गया, दैट मींस नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो गए। बट इन द केस ऑफ कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ओके, कंडक्टिविटी ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम 1 लीटर के अंदर फाइंड आउट करते हैं, है ना, 1 यूनिट के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम 1 यूनिट के अंदर कर रहे हैं तो उसमें से जैसे मान लो हमने पहले 3 लीटर लिया था, वाटर लिया था, उसके अंदर हमने अपना जो था सोल्ट था वो डाला हुआ था, है ना, उसमें से हमने 3 लीटर में से 1 लीटर को निकाला और उसका हमने कंडक्टेंस को फाइंड आउट किया, तो उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ आयंस ज्यादा थे। यानी कि अगर 3 लीटर के अंदर हमने नमक को डाला है, मान लो अपन ने 2 स्पून नमक डाला है ना, 2 स्पून नमक डाला है, तो वो 2 स्पून नमक डालने पर 3 लीटर है, मान लो वो ज्यादा खारापन दे रहा है ना,
ज्यादा सोल्टी है, लेकिन अगर हम उसमें और ज्यादा डाल दें, अब उसमें से देखो उसका जो अपन ने 3 लीटर लिया है उसमें से हमने 1 स्पून को अलग निकाला, ये एग्जाम्पल है ना, 1 स्पून को अलग निकाला तो उसमें हमें ज्यादा सोल्टी लगा। अब हमने क्या किया, वो 1 स्पून जो हमने टेस्ट किया था वो ज्यादा सोल्टी था, अब हमने उसमें और ज्यादा पानी डाल दिया, और ज्यादा पानी डालने के बाद में अब उसमें से 1 स्पून लेंगे तो उसमें उसका जो सोल्टी है ना, जो जितना उसमें पहले था टेस्ट, उससे उसका टेस्ट क्या आएगा, अलग आएगा, थोड़ा सा उसमें अपन कह दें कि खारापन कम होगा, है ना। अब वो जो नमक है वो अपना टेस्ट कम देगा, क्योंकि अब उस 1 स्पून के अंदर देखो नमक तो उतना ही था जितना पहले डाल रखा था, लेकिन हमने पानी ज्यादा कर दिया तो 1 स्पून के अंदर नंबर ऑफ आयंस कम आए। तो ऐसे ही जो कप्पा है वो क्या करते हैं, अपन 1 यूनिट निकालते हैं। अब अगर हम पानी डाल देंगे तो फिर 1 यूनिट लेंगे तो उसमें पानी ज्यादा और सोल्ट कम, है ना। तो अगर सोल्ट कम दैट मीन्स आयंस कम दैट मीन्स कप्पा डिक्रीज हो जाएगी। ओके, समझ में आई बात। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी, अब ये पूछ लेते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी, समझ में आई बात। देन कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन एंड कप्पा डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन बिकॉज इन 1 यूनिट नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज। ओके, ये भी मैं बता देती हूँ कि ये आफ्टर डाइल्यूशन ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है आफ्टर डाइल्यूशन। अगर ये भी आ जाए तो आप इसका ये हो जाएगा, है ना। ओ माय गॉड, रॉन्ग स्पेलिंग, डाइल्यूशन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। लास्ट क्वेश्चन, no last नहीं, 9th question. The conductivity of 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.024 Simon centimeter inverse. Calculate its molar conductivity. Molar conductivity, we have to find out molar conductivity. And what is given? The conductivity, given conductivity means क्या given है, कप्पा given है। Okay, find out क्या करना है, molar conductivity, that means lambda m। lambda m को find out करने का फॉर्मूला कप्पा into 1000 अपॉन मोलैरिटी। ओके, ये रही मोलैरिटी, है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ, वो नहीं है, ये मोलैरिटी है, ये है कप्पा। ओके, ये रहा कप्पा और ये रहा एम, बस रख दो, कप्पा की जगह पे क्या रखना है 0.02458 इंटू 1000, मोलैरिटी कितनी 2.0, सॉर्ट आउट कर दो, हो गया। बिल्कुल सिंपल है ये तो। ओके, फॉर्मूला याद रख लो बस, लैम्डा एम का क्या होता है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर्मूले अगर याद नहीं है ना फिर कुछ नहीं। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। ओके, डैनियल सेल के लिए जो नर्नेस्ट इक्वेशन फाइंड आउट आपको करनी है। डैनियल सेल की इक्वेशन क्या होती है, पहले तो देखो ये पूरा डेरिवेशन है आपके बुक के अंदर सीधा सीधा दिया हुआ है, वहां से इसको कर लेना। बस मैं इसको बता देती हूँ कि डैनियल सेल वाला अपने लास्ट में हमने क्या कर देना है, Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस कर देना है नर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर, लास्ट में ये कर देना। ओके, बाकी नर्नेस्ट इक्वेशन जो सेम बुक में दी हुई है वो वैसी की वैसी ही आपने इसको लिख देना है। ओके, लास्ट में ये कर देना। नेक्स्ट देखो, राइट डेबाय हक्कल ओसेंगर इक्वेशन। डेबाय हक्कल ओसेंगर, यहाँ पे मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए थे जो आपके बुक में डायरेक्ट है, क्योंकि वो थ्योरी है लंबी, उतनी लंबी थ्योरी को क्या ही लिखे। जैसे ये डैनियल सेल वाला है तो वो पूरा नर्नेस्ट इक्वेशन यहाँ पे एक्सप्लेन का मतलब है कि उसको ड्राइव करके लाना है, जो अपना है ना बुक के अंदर दिया हुआ है सेम वो डेरिवेशन उसको ड्राइव करके लाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ उसको ड्राइव कैसे किया है, वैसे तो बुक में किया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज ही है वो, लेकिन नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर दे सकती हो, है ना, कमेंट के अंदर, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, फ्यूल सेल विद डायग्राम, ये भी थियोरेटिकल पोर्शन है अपना, वही फ्यूल सेल का डायग्राम और उसका, अगर ये भी ना समझ में तो आप मुझे कर देना, फिर मैं इन 2 क्वेश्चन का और जो भी और क्वेश्चन है उनको लेके एक अलग क्लास अपन ले लेंगे। ओके, ये देखो ये वाला बहुत बार पूछ लेते हैं, डेबाय हक्कल ओसेंगर इक्वेशन डायरेक्ट इक्वेशन ही है और यही लिखनी है और कुछ बड़ी भी नहीं है, लैम्डा लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, इसको बस लिखना होता है और बहुत बार ये आ भी चुकी है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
PYQ के अंदर ये आ चुकी है, तो उसके अंदर आप देख लो चाहे, है ना। तो ये वाले ऐसे डायरेक्ट ही है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिबाई हक्कल हुसैंगर, मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये कई बार नहीं मिलती है, क्योंकि छोटा काफी थ्योरी के अंदर जाके अपने एनसीईआरटी के अंदर नीचे जाके है वो, तो उसके अंदर फिर ढूंढने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इसको तो यहाँ पे लिख दिया। ये तो सीधा सीधा ही पड़ा है बुक के अंदर, तो वहां से उठा लेना आप, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना। ओके, तो ये हो गया अपना, इसको देख लो एक बार, ये 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैं तुम्हारी क्लास प्रैक्टिकल की लेने की सोच रही हूँ, नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ भी जो थोड़ा बहुत है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।